अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है हार्मोन्स। इससे पहले हम बात कर चुके हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में और प्राइमरी स्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। आज हम इसके बारे में बात करेंगे हार्मोन्स को। एक्चुअली जब हमारे अंदर सेकेंडरी स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स अपीयर होना शुरू होते हैं, जैसे मैं कहूँगा आपको अगर हम बॉयज में देखेंगे, बॉयज में when it comes to boys and when we see the secondary sexual characteristics in boys, what you will see there, you will see mustaches, see mustaches here on the chest, right? Just an example here. And in girls you will see the development of breasts, mainly development of breasts. These changes, whether in boys or girls, these changes occur under the influence of these hormones. Now, what are hormones then? So, we can define hormones in the simplest manner. We can say hormones are actually the chemical substances which coordinate the activities of living organisms and also their growth. Yani, yim tam chemical substance yim zan coordinate karan mukhtalif activity jandaran maz bech karan control tihund growth, यानी growth ति growth या बाकी यम जन changes अस मज यिवान human body मज, ठीक, that is because of these hormones. So we can say hormones are actually the chemical substances. They are actually the chemical substances produced by specialized structures called as glands. Called as, what are glands? Glands are specialized structures present in our body which are responsible for secreting hormones. Hormones ch karan secrete ki khas structure sai body mas asan sai body mas throughout timun ch is wanan glands, timun ch wanan is glands. Which gland karan you can produce hormone. Isn't zaruri ki you can hormone produce pas kare hormone immediate action na. Hormones asan watun अकिस खास जाय पर अकिस खास आर्गन यद आर्गन पर पन एक्शन करान तथ वन टारगेट साइट, that is called as target site. So the hormone released by the glands, this hormone reaches the target organ, right, via blood, और वहीं पर उसको वो इन्फ्लुएंस करता है. जैसे मैं कहूँगा, अगर हम मिसाल लेंगे, हमारे सिर में दिमाग में एक ग्लैंड होता है, उसको हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड. इसको हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है, उसको हम बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन. उसको हम बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन. ये जो ग्रोथ हार्मोन है ये हमारे बढ़ने के लिए जरूरी है. अगर पिट्यूटरी ग्लैंड ये हार्मोन प्रोड्यूस कर बंद, if the pituitary gland will stop producing this growth hormone, we won't be able to grow. As much as the growth work kin. You see, pituitary gland hormone ch yeh karan, you know, you में तो misal pituitary gland hormone ch byak hormone, it has a target site kus temis axis testes basis female mas ovaries, ठीक. ये टेस्टीन तमत वो टेस्टीन कर स्टिमुलेट क्या कर पिट्यूटरी ग्लैंड पर द्रा हार्मोन अमिस को टारगेट टेस्टीज पर टेस्टीन स्टिमुलेट टेस्टीज को प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन ब्याक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन तो ओवरीज को एस्ट्रोजन. When the hormone is released under the influence of another hormone that was secreted by pituitary gland, so we can say the target of the hormone released by the pituitary gland was testes and ovaries. Testes and ovaries got stimulated under the influence of the hormone secreted by the pituitary gland. Then they produced testosterone and estrogen in response to the hormone released by the pituitary gland. This is how this system works. So, yet hormones watun as that is one target site. That is called as target site. So, चूंकि बॉडी मज दो किस्म ग्लैंड्स ग्लैंड में ग्लैंड वन तथ खास स्ट्रक्चर हार्मोन रिलीज कर. हार्मोन क्या हार्मोन बेसिकली केमिकल सबस्टेंस यम सानी बॉडी मज एक्टिविटी करान कोऑर्डिनेट बे करान
सोन बेन सोन ग्रोथ कंट्रोल ठीक वह दो किस्मिक ग्लैंड अगर एक्सोक्राइन फिलहाल एंडोक्राइन ग्लैंड वन they are also called as ductless glands. They are also called as ductless glands. Ductless glands गए endocrine gland वन या ductless glands तम gland यम पन secretion यानी पन हार्मोन आसन रिलीज करा without duct directly bloodस में so the directly into blood. Endocrine glands तम glands गए तम gland नम हार्मोन आसन रिलीज करा डायरेक्ट बराह रास्त कथ मज सैनिस ब्लडस मज या सैनिस खूनस मज दे आर कॉल्ड एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स मसलन पिट्यूटरी ग्लैंड सोन एंडोक्राइन ग्लैंड इथे पड़न फॉर एग्जांपल सोन टेस्टीज यम त एंडोक्राइन ग्लैंड ओवरीज यम त एंडोक्राइन ग्लैंड पेनिक्रियास वो सो आठ ज ये एंडोक्राइन तो एक्सोक्राइन ठीक इथे पड़न सोन थायराइड ग्लैंड जो हमारी गर्दन में होता है it is also an endocrine gland. All these glands are called endocrine glands because they pour out their secretion directly into the blood. Go use gland, pan secretion, pan hormone, barah ras trai खूनस मज कुन नाले वरे कुन डक्ट वरे डक्ट वनाय कैसे पड़न ट्यूब्स कुन नाले वरे ट्यूब वरे ताच ऐसे को हम से endocrine gland ठीक गो अशुस कास करे अशुस मस्टेज डेवलपमेंट गो यानी बॉयजन मज आई गोस एडोलसेंस मज मतलब you can see the mustache on the boys, you can see the hair growth on their chest, you can see broadening their shoulders and chest. In girls you will see the development of breasts, broadening of hips and all this. Yum change these changes occur because of the hormones. Yum change because of the hormones. ये changes होती हैं boys में adolescence में मैंने आपसे कल भी कहा था all these changes occur under the influence of hormones. ये सारी changes तभी हैं जब हार्मोन निकलना शुरू होते हैं. अब हार्मोन्स कब निकलना शुरू होते हैं? प्यूबर्टी में. प्यूबर्टी के टाइम में सारे हार्मोन्स निकलना शुरू होते हैं. इसीलिए हम कहते हैं कि टीन एज में अक्सर मतलब you might have seen you might have heard even your parents telling you that it is all because of the hormonal impact. That's why you start growing hair on your face, your mustaches come out, and you become a lot more inclined to sex related things. In certain cases you might have heard. तो ये इसलिए होता है कि आपकी बॉडी में प्यूबर्टी के टाइम ये हार्मोन्स निकलना शुरू होते हैं और इन्हीं हार्मोन्स के बदौलत आपकी बॉडी में ये चेंज आती है. आपकी बॉडी में ये चेंज आती है. इसके अलावा जो एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन निकलते हैं, जैसे मैंने कहा कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इससे हार्मोन निकलता है. टेस्टिस को इन्फ्लुएंस करता है. टेस्टिस से क्या निकलता है? टेस्टोस्टेरोन. और ओवरी से क्या निकलता है? एस्ट्रोजन. असली जो बड़ बार फर्क हर हार्मोन सेम होते हैं मेल और फीमेल में, सिर्फ अगर टेस्टिस तो ओवरीज. टेस्टिस कहाँ में किसमें होता है? इट इज इन मेल्स और ओवरीज फीमेल्स में. टेस्टिस से क्या निकलता है? टेस्टोस्टेरोन. ओवरीज से एस्ट्रोजन. ये दोनों हार्मोन जो होते हैं ये इनको हम बोलते हैं वी कॉल देम एज सेक्स हार्मोन्स. दीज आर कॉल्ड एज सेक्स हार्मोन. मसलन यम टेस्टिस पे नीर हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन सेक्स हार्मोन, ovaries पे नीर हार्मोन, एस्ट्रोजन इट्स आल्सो सेक्स हार्मोन. सो वी हैव two sex hormones in both sexes. One is testosterone and another is estrogen. There are other hormones. मतलब अच्छा थायराइड पर कुछ देना चाहिए. थायरॉक्सिन, राइट? पेनिक्रियास जैसे हम कहेंगे थायराइड ग्लैंड जो होता है हमारे गले में, इससे क्या निकलता है? इससे निकलता है थायरॉक्सिन. अगर कोई खुदा न खास निमिश कमी गश थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम या इस पर निमोस पेनिक्रियास, इससे क्या निकलता है? इंसुलिन. इंसुलिन क्या कर सोन शुगर लेवल तक मेंटेन सानी बॉडी में. ठीक ये प्रॉब्लम डायबिटीज अम शुगर. इट इज बिकॉज दिस इंसुलिन इज नॉट secreted in sufficient amounts. या नमो फॉर एग्जांपल ब्या नमो एड्रेनल, जो हमारी एड्रेनल ग्लैंड हमारी जो किडनी के ऊपर होता है, इससे क्या निकलता है? एड्रेनलिन. ADRENALI. एड्रेनलिन का काम क्या कहता है? इट हेल्प्स इन द बैलेंस. साल्ट जो है ना, साल्ट बैलेंस, हमारी बॉडी में जो नमक की बैलेंस है उसको कौन मेंटेन करता है? ये एड्रेनल ग्लैंड. ये कहाँ निकलता है? एड्रेनल कहाँ निकलता है? एड्रेनल ग्लैंड से. ठीक. इसी तरह और भी जो हमारे पास है पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है ग्रोथ हार्मोन, जो हमें ग्रोथ में मदद करता है. तो दीज आर नॉट सेक्स हार्मोन्स. थायराइड, पेनिक्रियास, एड्रेनल,
ये वनो सुप ये हार्मोन मगर ये पन फंक्शन मगर सिर्फ नमे टेस्टिस तो ओवरी टेस्टिस कुछ हार्मोन यह मेल हार्मोन ओवरीज टेस्टिस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवरीज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस से क्या निकलता है टेस्टोस्टेरोन दैट्स अ मेल हार्मोन सेक्स हार्मोन राइट ओवरीज निकलता है एस्ट्रोजन it is also a sex hormone both these hormones im can help मतलब अकिस मेलस अकिस फीमेलस कत मज सेक्सुअल मैच्योरिटी सेक्सुअली मैच्योर गसनस मज ठीक अगर न फॉर एग्जांपल पिट्यूटरी ग्लैंड मज ये हार्मोन ने स्टिमुलेट कर go we can say sex has a lot to do with our pituitary gland if the hormone from the pituitary gland is not released testes and ovaries they will not be stimulated and when they will not be stimulated they will not be able to secrete their respective hormones so what will happen the person whether boy or girl he or she won't be able to get sexually a mature person so by a sexually mature person तो इतने पॉइंट अगर हम इंसेक्ट्स की बात करेंगे हालांकि केमिन मज अगर आप लेंगे मिसाल किसकी फ्रॉग में होती है ना चेंजेस उसको हम क्या बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस और इस मेटामॉर्फोसिस के लिए भी जिम्मेदार क्या है हार्मोन लेकिन हम यहाँ पर इनको कहते हैं इंसेक्ट हार्मोन सो मेटामॉर्फोसिस इज आल्सो ड्यू टू द हार्मोन्स बट हियर वी कॉल देम एज इंसेक्ट हार्मोन्स राइट नाउ आई एम श्योर यू आर नाउ very comfortable with this term hormones and tomorrow inshallah we will have a discussion on some other topic. Thank you very much.